دنیا نے دیکھا تھا یہ اقلیت میں مٹھی بھر لوگ ہیں، ہم آج مخالفت کر کے ان کا سر کچل دیں گے، زمانے سے ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ مگر جس انسان نے 40ویں مسلمان کی شکل میں اسلام کے دامن میں جگہ پائی، زمانہ جسے عمر ابن خطاب کہتا ہے، زمانہ جسے عمر فاروق کہتا ہے، 40ویں مسلمان کی شکل میں اسلام قبول کرتے ہیں، دوسرے خلیفۃ المسلمین کی شکل میں صاحب اسلامی حکومت کے باغ و ڈور کو سنبھالتے ہیں، اور زمانہ دیکھتا رہ گیا، آپ ہی دنیا سے زیادہ پر اسلامی حکومت کا نفاذ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اللہ جہنم سے نکالے گا، جنت میں ڈال دے گا۔ ہمارے لیے رول ماڈل کل بھی مصطفیٰ جان رحمت تھے، آج بھی مصطفیٰ۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم بولے تو دیش لڑ ہوئی ہے۔ اگر ہم کسی سے سوال پوچھ دیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو میرا بھی ایک سوال ہے، اور پورے بھارت کے لا ان آرڈر سے میرا سوال ہے، آپ بتائیں بیوی کسی کی اور بھاگ کے کسی کے ساتھ شادی کیسے رچا لیتی ہے؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، اب صاحب بیوی کسی کی ہے، کسی کے ساتھ بھاگ کر شادی رچا لی، آپ نے پروٹوکول دے دیا، ہاں میاں یہ تو اب اس کی بیوی ہو گئی، اب دوسرا شوہر دیکھتا رہ گیا۔ مگر اسلام کے دامن میں آئیے، یہ آپ کا پروٹوکول اتنا کمزور ہے کہ دوسرے کی بیوی دوسرے کے ساتھ بھاگ کر اس کی بیوی بن جاتی ہے، دوسرے کا شوہر دوسرے کی بیوی صاحب بھاگ کر کے تیسرے کے ساتھ جا کر کے شوہر بنا لیتی ہے۔ مگر اسلام کہتا ہے جب تک بیوی دوسرے کے نکاح میں ہے، جب تک نکاح نہیں ٹوٹے گا تب تک وہ دوسرے کے نکاح میں نہیں جا سکتی ہے۔ ایسی بات ہے، یہ اسلام ہے، ہمارا دامن اتنا کمزور نہیں ہے۔ یہودیوں کی سازش ہے، یہودی چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے پہلے جو برائیاں عام تھی، پھر سے زمانے میں ان برائیوں کو عام کر دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العلی العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، جو ہی میں اسٹیج پر بیٹھا تو ایم ایس پریس میڈیا مختار ہے۔ اب تو جلسے میں جہاں جائیے اور کسی مجلس میں بیٹھیے تو لوگوں کی زبان پر ایک ہی نام ہے، ہندوستان کی ایک بہادر بیٹی کا، جسے لوگ صوفیہ قریشی کہتے ہیں، اور جب میں بیٹھتا ہوں تو اس کے چرچے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے کہا کہ دیکھیے لوگ نعرہ لگاتے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ بیٹی بڑھاؤ، بیٹی بچاؤ بیٹی بڑھاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن اسلام واحد مذہب ہے جو نعرہ نہیں لگاتا، کام کر کے دکھاتا، کام کر کے دکھاتا۔ قاتل کی یہ دلیل بھی منصف نے مان لی، مقتول خود گرا ہے خنجر کی نوک۔ اللہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میری گفتگو ہوگی مختلف گوشوں کے حوالے سے۔ آج ہم سماج میں پچھڑے ہیں تو کیا ہمارا احساس پچھڑا ہے یا واقعی میں ہم پچھڑے ہیں؟ آج زمانہ ہمیں پسماندہ کہہ رہا ہے تو ہمیں پسماندہ ہونے کا احساس دلایا جا رہا ہے یا واقعی میں ہم پسماندہ ہو گئے ہیں؟ آج زمانہ ہمیں اقلیت کہہ کے پکار رہا ہے تو ہمیں اور احساس دلایا جا رہا ہے کہ آپ اقلیت میں اور اقلیت میں چلے جائیے، لیکن اسلام ہے جو کہتا ہے قبیلہ خاطر نہ ہو، ٹینشن نہ لے، اقلیت میں بھی رہ کر اکثریت پہ غالب رہنے کا سلیقہ اسلام سکھلاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج پوری دنیا میں اور جہاں جہاں ڈیموکریسی کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے مولانا اسلم صاحب ہماری جماعت کے عظیم عالم ہیں، کہا آپ اقلیت میں ہیں، ہم اکثریت میں ہیں، ہم ڈیموکریسی میں ہیں، آپ یہ ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اقلیت میں ہم آج ہیں
یا اس وقت تھے جب مصطفیٰ جان رحمت نے اسلام کی تبلیغ شروع کی؟ اقلیت میں ہم آج ہیں یا اس وقت تھے جب زید بن ارقم کے گھر میں مصطفیٰ جان رحمت صحابہ کو کلمہ پڑھا رہے تھے؟ ہم اقلیت میں آج ہیں یا اس وقت تھے جب حضرت عمر ابن خطاب 40ویں مسلمان کی شکل میں اسلام قبول کر رہے ہیں؟ ہم اقلیت میں آج ہیں یا اس وقت تھے جب بلال حبشی مکے کی گلیوں میں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے گھسیٹے جا رہے ہیں؟ بتاؤ تو آپ کو پتا چلے گا نہیں مولانا، ہم بدر میں بھی اقلیت میں تھے، ہم خندق میں بھی اقلیت میں تھے، ہم صاحب صلح حدیبیہ میں بھی اقلیت میں تھے، ہم حنین میں بھی اقلیت میں تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بدر میں 313 ہم تھے، سامنے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ حنین میں تعداد ہماری کم تھی، سامنے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ خندق میں تعداد ہماری کم تھی، سامنے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ میاں کربلا میں تو ہم 72 ہی تھے، سامنے والوں کی تعداد 22,000 کی تھی۔ مگر بتاؤ ہم اقلیت میں رہ کر کیا اس وقت کے لوگوں نے یہ سوچا تھا ہم 72 ہیں کربلا کیسے جیتیں گے، ہم 313 ہیں جنگ بدر کیسے جیتیں گے، ہم صاحب ہماری تعداد بڑی کم ہے ہم خندق میں کیسے کامیاب ہوں گے، ہماری تعداد بڑی کم ہے ہم زمانے پہ کیسے حاوی ہوں گے؟ قرآن نے انہیں مژدہ دیا تھا، قبیلہ خاطر نہ ہو، ٹینشن نہ لو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھنا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، قبیلہ خاطر نہ ہو، غمگین نہ ہو، تم ہی کامیاب ہو اگر تم صاحب ایمان ہو، یعنی تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے تو بدر میں تم کامیاب ہو، خندق میں تم کامیاب ہو، حنین میں تم کامیاب ہو، صلح حدیبیہ میں تم کامیاب ہو، خیبر میں تم کامیاب ہو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو 72 ہو مگر میدان کربلا میں تم کامیاب ہو۔ کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ صحابہ کے ایمان کا حال یہ ہے نبی لکڑی دے دے، صحابہ تلوار سمجھ کر میدان جنگ میں اتر جائے۔ ایمان کی پوزیشن یہ ہے سکی ہوئی گٹلیاں ہیں چوس کر صحابہ میدان جنگ میں اتر جائے۔ ایمان کی پوزیشن یہ ہے پیٹ پہ پتھر باندھ کر صحابہ دشمنوں سے ٹکرا جائے۔ صاحب ایمان کی پوزیشن یہ ہے مسلسل کئی روز کے بھوکے پیاسے ہیں مگر کھاتی پیتی ہوئی قوم سے ٹکرا جائے۔ زمانے کی نسلیں دیکھتی رہ گئی، دنیا نے دیکھا تھا یہ اقلیت میں مٹھی بھر لوگ ہیں، ہم آج مخالفت کر کے ان کا سر کچل دیں گے، زمانے سے ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ مگر جس انسان نے 40ویں مسلمان کی شکل میں اسلام کے دامن میں جگہ پائی، زمانہ جسے عمر ابن خطاب کہتا ہے، زمانہ جسے عمر فاروق کہتا ہے، 40ویں مسلمان کی شکل میں اسلام قبول کرتے ہیں، دوسرے خلیفۃ المسلمین کی شکل میں صاحب اسلامی حکومت کے باغ و ڈور کو سنبھالتے ہیں، اور زمانہ دیکھتا رہ گیا آدھی دنیا سے زیادہ پر اسلامی حکومت کا نفاذ کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار سرکاہی، عزیز الاولیاء کانفرنس۔ اب آپ کو یہ ماننا پڑے گا دشمنوں سے ٹکرانے کے لیے آپ کو طاقت نہیں ایمان کی طاقت کی پہلے ضرورت ہے۔ زمانے میں کامیاب ہونے کے لیے ایمان کی طاقت کی پہلے ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہی ایمان ہے جس نے مسلمانوں کو اتنا مضبوط کیا، اتنا صاحب۔ لیکن آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ میری قوم کے نوجوان بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے آپ جس بستی سے یہاں پر آئے ہو وہاں پہ آپ کی تعداد بڑی کم ہو سکتا ہے آپ جس گھرانے سے بلانگ کر رہے ہو آپ کا گھرانہ بہت پسماندہ ہو، لوگ آپ کا شمار اقلیت میں کر رہے ہو سکتا ہے آپ کا تعلق فارورڈ سے نہیں بائیکورڈ سے ہو سکتا ہے آپ کو سماج میں دبا کچلا کہا جاتا ہو سکتا ہے سماج میں بستی میں آپ کے گھر کی کوئی عزت نہیں ہو۔ لیکن اے میری قوم کے بچوں، آج کے جلسے میں آئے ہو، سلطان رضا تجھ سے ایک سوال کرتا ہے، کیا اگر آپ کے خاندان کو گاؤں والے نیچی نظر سے دیکھتے ہیں تو کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اپنے خاندان کے وقار کو پھر سے اونچا کر دینا؟ کیا اگر آپ کے گھرانے کو زمانہ نیچی نظر سے دیکھتا ہے تو کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کو اپنے گھرانے کے وقار کو اونچا کر دینا؟ اگر زمانہ آپ کے ماں باپ کو گری ہوئی نظر سے دیکھ رہا ہے، غریب ہے، بڑی مختصر زندگی ہے، اس کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، اب آپ بتاؤ میری قوم کے نوجوانوں اس کے لیے کون سا عمل کرو گے کہ زمانے میں تیرے ماں باپ کا نام فخر سے اونچا ہو،
जमाना तुझे नीची नजर से नहीं बल्कि ऊंची नजर से देखने वाला बन जाए। आप कहोगे मियां साहब आखिर इसकी सूरत क्या हो सकती है? इस्लाम ने इसकी जो सूरत बताई, कहा 3 चीजें तुम्हारी जिंदगी में हो जाए। नंबर 1, ईमानी तौर पे तुम मजबूत हो जाओ। नंबर 2, इल्मी तौर पे मजबूत हो जाओ। उसके बाद अमल साले यानी किरदार और कैरेक्टर को अच्छा बना लो। अगर 3 चीजें तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो गई, दुनिया में तेरा वकार फिर से बहाल हो जाएगा। लोग तुझे इज्जत भरी निगाह से देखेंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये ईमान है, इसलिए आप याद रखिए हर हाल में ईमान की हिफाजत कीजिए। ईमान की अहमियत को समझने के लिए इतना ही समझना काफी है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसके सीने में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, अल्लाह ताला जहन्नम से निकाल कर उसे जन्नत में डालेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1-2 पॉइंट वॉल्यूम और बढ़ सकता है क्यों है? देखिए मैं तो इनसे कभी बोलता नहीं हूँ कि वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, है ना, और बड़े नेक आदमी है। तो राई के दाने के बराबर ईमान होगा, अल्लाह जहन्नम से निकालेगा, जन्नत में डाल देगा। पावर ऑफ ईमान को आपने समझ लिया, इसलिए हर हाल में अमीरों के लिए भी ईमान जरूरी है, गरीबों के लिए भी ईमान जरूरी है। जो जहां है साहब ईमान रहे। अगर अमीर है, अगर ईमान की दौलत उसके पास है, सारी दुनिया की दौलतें उसके कदमों में आ गई। जो ही दौलत आती है, कोई शराब के तरफ बुलाता है, कोई जुए के तरफ बुलाता है, कोई जना के तरफ बुलाता है, कोई अय्याशी के तरफ बुलाता है। लोग दावतें देते हैं। आज सऊदी अरब के रईसों के पास दौलतें हो गई, जमाना उन्हें अय्याशियों की तरफ बुला रहा है। सऊदी अरब के रईस ज़ादे ये भूल गए कि ये जो अरब की जमीन पर हमारी हुकूमत कायम है, ये हमारे बाप दादों के ब्लड की वजह से नहीं, बल्कि बदर में सहाबा ने अपना ब्लड बहाया है, खंदक में सहाबा ने अपना लहू दिया है, खैबर में सहाबा ने अपना लहू दिया है। सहाबा ने अपना लहू देकर इस्लाम को सींचा और अरब की सरजमीन पर इस्लामी हुकूमत का निफाज किया। जहां शराब के मटके को तोड़ दिया गया, नाच गाने बाजे पे बैंड लगा दिया गया, जुए का खात्मा कर दिया गया, बेहयाई बुराई को मिटा दिया गया, निकाह को आम किया गया, सही माशरे की तश्कील दी गई। आज यहूदियों की साजिश ने उस जमीन को फिर से नापाक कर दिया है। आज यहूदियों की साजिश ने वहां की बहू बेटियों की इज्जत और आबरू को नीलाम कर दिया गया है। कौन थे मोहम्मद बिन कासिम? अरब वाले भूल गए। साहब कौन थे? सलाहुद्दीन अय्यूबी अरब की सरजमीन ने भुला दिया। उसकी वजह सिर्फ यही है, ये लोग जो वलियों की दुश्मनी में जीते हैं, सहाबा की दुश्मनी में जीते हैं, अंबिया के बुग़्ज़ में जीते हैं। साहब इनकी औलादों का हश्र आप देख लीजिए। इन्होंने कभी अपनी औलादों को उमर इब्न खत्ताब की तारीख नहीं पढ़ाई, इन्होंने कभी अपनी औलादों को हजरत सलमान फारसी की तारीख का मुताला नहीं कराया, इन्होंने कभी अपनी औलादों को बिलाल हबशी की तारीखें नहीं पढ़ाई, इन्होंने साहब अपनी औलादों को बुजुर्गों की सीरत का मुताला करने से रोका। ये भूल गए। नतीजा क्या निकला? आज आले सऊद ये समझना मुश्किल हो गया है उनके लिए कि हमें शराब के बारे में शरीयत क्या कहती है, साहब बेटियों के इज्जत और आबरू के बारे में शरीयत क्या कहती है। आज अफसोस होता है क्या इस दौर के भी गठमुल्ले इस वक्त भी कहेंगे कि सऊदी अरब हमारे लिए रोल मॉडल है। करम है बरेली के अहमद रजा का, जिन्होंने कहा था दुनिया की कोई हुकूमत हमारे लिए रोल मॉडल नहीं हो सकती, हमारे लिए रोल मॉडल कल भी मुस्तफा जाने रहमत थे और आज भी मुस्तफा। याद रखिएगा साहब, ये इस्लाम है जिसने नारा दिया था। अब मैं बात कर रहा था, सबसे पहले इस बात पे गुफ्तगू हो। आज मेरी कौम के नौजवान है, आपका जिस बस्ती से ताल्लुक है, अब आप चाहते हैं कि बस्ती में आपका वकार बहाल हो जाए। अब आप करेंगे क्या? 3 काम करना है। नंबर 1, पहले आपको ईमानी तौर पे मजबूत होना है। लाख मुसीबत आए हमें साबित कदम रहना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाख मुसीबत आए हमें साबित कदम रहना है। अमीरी है, दौलत आ गई तो भी साबित कदम रहना है। कोई हमें बेहया न बना सके, कोई अरब के अमीरों की तरह अय्याश न बना सके, कोई साहब हमें नवाब वाजिद अली शाह की तरह अय्याश नहीं बना सके, कोई अकबर डिग्रेट की तरह हमें अय्याश न बना सके। दौलत आए तो भी साबित
قدم رہنا ہے، اور غریبی ہے تو بھی ایمان پہ ثابت قدم رہنا ہے۔ مولا تو بھوکے رکھے تو بھی تیرا شکر ہے، مولا تو کپڑا دے تو بھی تیرا شکر ہے، مولا تو جس حال میں رکھے تیرا شکر ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا، حضرت امام کسائی کا نام آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا تو مجھے سنیے۔ امام کسائی خلیفہ وقت ہارون رشید کے زمانے کے بہت زبردست عالم دین، بہت بڑے عالم دین، اللہ اکبر۔ امام کسائی بڑے غریب گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ حال یہ تھا کہ صاحب غریبی کا عالم یہ تھا کہ گھر میں کھانے کے لالے پڑ جاتے تھے۔ امام کسائی روزانہ علم حاصل کرنے کے لیے جاتے اور کئی مہینوں بعد علم حاصل کر کے آتے۔ ان کا ایک پڑوسی تھا، پڑوسی بیٹھ کر کے صاحب ان کے دروازے کے آگے سڑک کے کنارے مشروبات بیچا کرتا تھا، شربت وغیرہ۔ امام کسائی 6 مہینے بعد پڑھ کر کے آئے، اس نے پوچھا شہزادے نظر نہیں آتے ہو، کہاں جاتے ہو؟ کہا میں علم حاصل کر رہا ہوں۔ اس نے کہا علم حاصل کر رہے ہو؟ کہا ہاں، کیا پڑھتے ہو؟ کہا یہ کتابیں ہیں۔ اس نے کہا دو اپنی کتابیں، میں اس کو پانی میں ڈالوں گا تو بڑا شربت میٹھا ہو جائے گا، یعنی امام کسائی پہ طنز کرتا۔ امام کسائی کہتے اچھا ٹھیک ہے میری کتاب دو، ایک دن یہ شربت میٹھا ضرور بنے گا۔ امام کسائی پھر پڑھنے کے لیے چلے گئے، جاتے رہے آتے رہے۔ ایک وقت آیا امام کسائی سے اس نے کہا اے کسائی پڑھ کر کے کیا کرو گے؟ کیا تم کون سی دولت کماؤ گے؟ تیرے گھر میں اتنی غریبی ہے۔ امام کسائی نے کہا ٹینشن نہ لے، میرے گھر کا کاروبار چل جاتا ہے۔ کہا کسائی میں نے کہا نا اپنی کتاب دے میٹھا شربت بنا دوں گا۔ امام کسائی نے کہا وقت کا انتظار کرو، ایک دن آئے گا انہی کتابوں سے میٹھا شربت تیار ہوگا۔ امام کسائی جی لگا کر کے پڑھتے رہے۔ وقت آیا کہ اس دور کے سب سے بڑے عالم بنے۔ جب عالم سب سے بڑے بنے تو صاحب جب خلیفہ وقت ہارون رشید کو پتا چلا میری ریاست کا ایک شہزادہ پڑھ لکھ کر صاحب بھلا ملک میں بہت بڑا عالم بنا ہے، تو جب لوٹ کر آنے لگے تو ہارون رشید نے کہا اے میری حکومت والوں سنو، یاد رکھنا آج ہمارے ملک کا ایک بچہ سب سے بڑا عالم بن کر آ رہا ہے، اس کے استقبال میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اس کی تعظیم میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا تھا، وزیر نے اعلان کر دیا، بستی والے پورے ملک والے سب باندھے کھڑے ہو گئے، امام کسائی کی تعظیم کی جا رہی ہے، کوئی پھول پہنا رہا ہے، کوئی انعام دے رہا ہے۔ بادشاہ وقت نے اپنا مشیر خاص کے طور پہ امام کسائی کو مقرر کیا۔ امام کسائی چلتے رہے، امام کسائی چلتے رہے، چلتے رہے۔ جب اپنے گھر کے قریب پہنچے پھر اس کے پاس گئے جو شربت بنا رہا تھا، کہا لوگوں ٹھہرو ذرا مجھے اپنے پڑوسی سے مل لینے دو۔ قریب گئے، جا کر کہا سن تو کہتا تھا نا کہ صحیح تو اپنی کتابیں میں شربت بڑا میٹھا ہوگا، دیکھ اللہ نے میری کتابوں سے شربت کتنا میٹھا بنا دیا ہے، میری کتابوں سے شربت کتنا میٹھا بنا دیا ہے۔ زمانہ آج میرا پروٹوکول دیکھ رہا ہے، آج لوگ میری نگاہیں دیکھ رہے ہیں۔ اے میری قوم کے شہزادوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ کے خاندان کو زمانہ نیچی نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو آپ پڑھنے میں محنت کرو، ایمانداری میں محنت کرو، آپ عمل میں محنت کرو، اتنا پڑھو آئی پی ایس افسر بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، بہترین عالم بن جاؤ، صاحب کچھ نہ کچھ بن جاؤ، اتنا پڑھ لکھ کر بڑا بنو کہ جب گاؤں میں واپس آؤ تو گاؤں کا ہر ویکتی دیکھ کر کہے ہمیں فخر ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایسا لال پیدا ہوا ہے جس نے صاحب یو پی ایس سی میں اتنے نمبرات لائے، جس نے نیٹ میں اتنے نمبرات لائے، جو اتنا بڑا عالم بن کر کے آیا ہے، جسے قاضی شہر مظفر پور بنا دیا گیا ہے۔ یعنی اتنا پڑھو جو لوگ تجھے نیچی نگاہ سے دیکھتے رہے ان کی نگاہیں نیچی ہو جائے اور تیری نگاہیں ان کے اوپر ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، عزیز الاولیاء کانفرنس، زمینیں پکڑی پکوہی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یعنی اتنا پڑھو، ظاہر سی بات ہے آپ اعلیٰ حضرت کی زندگی کو پڑھیں، آپ حضور تاج الشریعہ کی زندگی کو پڑھیں، آپ مفتی اعظم ہند کی زندگی کو پڑھیں، آج مظفر پور میں سرکار سرکاہی کی زندگی کو پڑھیں۔ کیا ان کا گھرانہ بڑا رئیس زادہ گھرانہ تھا؟ کیا ان کے گھرانے کا پروٹوکول بہت بڑا تھا؟ کیا ان کے گھرانے کا معاملات بہت بڑا تھا؟ کیا وہ بہت رئیس زادے تھے؟ کیا ان کا خاندان بہت اونچا تھا؟ آپ کو ماننا پڑے گا نہیں میاں، مگر سرکار سرکاہی نے اپنی زندگی کو ایمان، علم اور عمل سے ایسا سجایا، سب
की निगाहें नीची हो गई और सरकार सुल्तानी का परचम लहराता चला गया। जाहिर बात है अगर आप चाहते हैं खोया हुआ वकार वापस आए, जाहिर सी बात है अकलियत में अक्सरियत पर गालिब आना है। आप जरा सा सोचे कितना भयानक दौर था, लोगों ने हमारा जीना हराम कर दिया था। अभी साहब कौन क्या बोले, अगर हम बोले तो हमारी पोजीशन ये है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम बोले तो देशद्रोह हुई है। अगर हम किसी से सवाल पूछ दे कि ये क्यों हो रहा है तो मेरा भी एक सवाल है और पूरे भारत के लॉ इन ऑर्डर से मेरा सवाल है, आप बताएं बीवी किसी की और भाग के किसी के साथ शादी कैसे रचा लेती है, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। जाहिर सी बात है अब साहब बीवी किसी की है और किसी के साथ भाग कर शादी रचा ली, आपने प्रोटोकॉल दे दिया, हाँ मियाँ ये तो अब उसकी बीवी हो गई, अब दूसरा शौहर देखता रह गया। मगर इस्लाम के दामन में आइए, ये आपका प्रोटोकॉल इतना कमजोर है कि दूसरे की बीवी दूसरे के साथ भाग कर उसकी बीवी बन जाती है, दूसरे का शौहर दूसरे की बीवी साहब भाग करके तीसरे के साथ जाकर के शौहर बना लेती है। मगर इस्लाम कहता है जब तक बीवी दूसरे के निकाह में है, जब तक निकाह नहीं टूटेगा तब तक वो दूसरे के निकाह में नहीं जा सकती है। ऐसी बात है ये इस्लाम है, हमारा दामन इतना कमजोर नहीं है। यहूदियों की साजिश है, यहूदी चाहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कियामत से पहले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कियामत से पहले जो बुराइयां आम थी फिर से जमाने में उन बुराइयों को आम कर दिया जाए। आप ईमानदारी से बताएं उन बुराइयों को आम करने के लिए उन्होंने क्या किया, शराब को आम करने की कोशिश की, जुए को आम करने की कोशिश की, जना को आम करने की कोशिश की, लिबास को छोटा कर दिया, नाच गाने की महफिलें सजाई, ऐशो इशरत की महफिलों का इनेकाद किया, सिर्फ इसलिए जिस बुराइयों को नबी ने मिटाया था आज उन बुराइयों को फिर से आम किया जा रहा है। मगर हमारी कौम इसे समझने के लिए तैयार नहीं है, हमारी कौम इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। आज नरसिम्हानंद सरस्वती जैसे करोड़ों गुंडे और भेड़िए रोजाना एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ बोल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, साहब उस मिसाइल मैन और राष्ट्रपति के खिलाफ जिसने निस्वार्थ तौर पे हिंदुस्तान की खिदमत की, भारत की खिदमत की। आज साहब जिनका अपना कोई वजूद नहीं, चरित्र नहीं, चरित्रहीन लोग सूफिया कुरैशी पे कमेंट कर रहे हैं। सुल्तान रजा पूछना चाहता है कमेंट करने से पहले अपने गरीबान में झांक कर देख लो, इन वर्दी वालों पे कमेंट न करो जो रातों को जाग कर तेरी हिफाजत करते हैं। है तेरे पास जिगर, तू तो अपने खानदान की हिफाजत नहीं करता, मुल्क की हिफाजत क्या करेगा, तू मुल्क की हिफाजत क्या करेगा। लेकिन हम लोगों से मत पूछ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ चलोगे तो हर खानदान में 2-4 बच्चे बॉर्डर पर मिलेंगे। मेरा खुद अपने चचा का लड़का बीएसएफ में बॉर्डर पे नौकरी करता है, मेरे गांव के कई बच्चे हैं जो बॉर्डर पे तैनात है, मेरे जिले का एक लाल इम्तियाज हसन मुल्क की हिफाजत में बॉर्डर पे जिसने कुर्बानी दी। आप क्या बात करोगे सूफिया कुरैशी के मुकाबले की बात करने वालों, जिसका बाप बॉर्डर पे मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ा हो, जिसका दादा मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ा हो, जिसका शौहर मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ रहा हो, साहब जो अपनी जान को हथेली पे रखकर मुल्क की हिफाजत की बात कर रही हो। आज ये लोग इतने कमीने और कम वक्त हो गए जिन्होंने अपना वकार खो करके साहब बेटियों की इज्जत और आबरू और उनके ऊपर हमला आवर हो गए। साहब इसलिए मैं कहूंगा आप बेटियों की तरबियत अच्छी कीजिए, इतनी तरबियत कीजिए कि कम से कम मुल्क की वफादार बने, वफादार नहीं बन सकती तो कम से कम मुल्क की गद्दार तो मत बने, मुल्क की गद्दार तो मत बने। ताज्जुब की बात है आज नरसिम्हानंद 1 करोड़ जहर उगल रहा है एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ, क्यों नहीं उसे जेल में उठा करके डाल देते। नहीं साहब तमाशा है, याद रखिएगा अगर ये नफरत की हवाएं इस मुल्क में यूं ही चलती रही और इसको आपने इसे खत्म करने की कोशिश नहीं की तो याद रखिए कि दिन आएगा हमें तबाह होने से कौन बचा सकता है। हम आपसी नफरत में घुट घुट करके दम तोड़ देंगे, मर जाएंगे साहब। इसलिए याद रखिए इस्लाम मोहब्बत के माहौल को पैदा करता है, इस्लाम इखलाक व वफा के माहौल को जन्म देता है, इस्लाम इखलाकियात की पे गुफ्तगू करता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भारत में इस्लाम की तबलीग के लिए आए। कोई कह सकता है गरीब नवाज के दस्तरखान पे हिंदू भी मौजूद है और मुसलमान भी मौजूद है, सिख भी मौजूद है, क्रिश्चियन भी मौजूद है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा आज भारत के चौक चौराहों पे लिखा रहता है साहब गाड़ी
दीवारों पे लिखा हुआ मिलेगा, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ। आज मैं पूछना चाहता हूँ, हर रोज भारत में बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। कौन इन बेटियों का मुहाफिज होगा? कौन इन बेटियों की इज्जत और आबरू का ख्याल किया जाएगा? बेटियों पे अभद्र कमेंट किया जा रहा है। कौन बेटियों के प्रोटोकॉल की बात कर रहा है? मैं आपसे याद दिलाना चाहूंगा, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ के नाम पर साहब एक दौर था, यहूदियों ने साजिश रची। कहा मियां, मुसलमानों को मिटाने के लिए या इस्लाम के खात्मे के लिए जरूरी है कि साहब मुसलमानों के किरदारों कैरेक्टर पे हमला किया जाए, मुसलमानों के अखलाकियात पे हमला किया जाए। इन्होंने ठीक वही किया। बेटियों से कहा, बेटियों सुनो, औरत हो तो मर्दों के मुकाबला करो और मर्दों के मुकाबले में निकल जाओ। औरतों को शायद ऐसा लगा हम घर से निकल जाएंगे, कामयाबी हमें मिल जाएगी। साहब कुछ औरतों ने आजादी निस्वा के नाम पर साहब घर बार को छोड़ा, तालीमें हासिल की, बहुत सारे मामलात हुए, मगर दो चार बातें मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। इन्होंने क्या किया? आजादी निस्वा के नाम पे किसी को कालगर्ल्स बनाया, किसी को मॉडल गर्ल्स बनाया, किसी को कुछ बनाया, किसी को कुछ बनाया। उनकी इज्जतें आबरू लूटी गई और लूटी जा रही है। आज बॉलीवुड की लड़कियों से पूछिए, कहेंगी हम सुरक्षित नहीं है। आज साहब इसी मुल्क में उस महिला बॉक्सर से पूछिए जिसने कई पदक इस मुल्क के लिए जीते थे, क्या हुआ? दिल्ली में बैठकर, इंडिया गेट पे बैठकर प्रदर्शन करती रही कि फला नेता ने मेरी इज्जत लूट ली, मगर साहब उसे इंसाफ नहीं मिला। जाहिर सी बात है, लेकिन बात लोग औरंगजेब आलमगीर की करते हैं। औरंगजेब आलमगीर ने तो इतना ही किया था, सुना था कि शकुंतला की इज्जत लूटने वाली है तो महीनों खाना नहीं खाया था, पानी नहीं पिया था। कहा था बेटी शकुंतला जा, औरंगजेब आएगा और तेरी इज्जत बचाएगा। साहब दुनिया में, भारत में है कोई इंसाफ पसंद जिसने इब्राहिम कोतवाल को दो हाथियों के टांगों में उसके टांग बांधकर बनारस में बीचों बीच फाड़ दिया हो और जमाने को दर से वफा दिया हो? हम बेटियों की इज्जत करते भी हैं और हम बेटियों की इज्जत बचाते भी हैं। ये इस्लाम है जिसने दुनिया में सबसे पहले, जब बेटियां दफनाई जा रही थी, जब बेटियां जलाई जा रही थी, जब बेटियों का कोई वकार नहीं था, बेटियों की कोई इज्जत नहीं थी, इस्लाम ने सबसे पहले बेटियों के लिए चरागे को वफा जलाया। कहा बेटियां दफनाने के लिए नहीं है, बेटियां जलाने के लिए नहीं है, बेटियां डोलियों में सजाने के लिए है। सुनो, ये बेटियां हैं तो बाप के लिए रहमत है, बेटी है तो बाप के लिए रहमत है। औरत अगर बीवी है तो शौहर के लिए मोहब्बत है, औरत अगर बहन है तो भाई के लिए इज्जत है, औरत अगर माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजीजुल औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। तन्हा जिस मजहब ने औरतों के वक़ार को बढ़ाया उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। इस्लाम ने बढ़ाया ही नहीं बल्कि इस्लाम ने सही तर्जमानी की, तरबियत की। औरत हो तो तेरी जिंदगी का मकसद ये है, तेरी गोद में तेरी औलादें कैसे पलेंगी, तेरी औलादें बड़ी होंगी तो प्रोटोकॉल क्या होगा, तुम बड़े होगे तो प्रोटोकॉल क्या होगा, तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या होगी। आज इस समाज में हम जीवित और जिंदा हैं। ऐ मेरी कौम के शहजादों, ये दौर बड़ा पुरफतन दौर है और बड़े पुरफतन दौर में हम और आप जी रहे हैं। आपसे मेरा एक ही सवाल है, आप ईमानदारी से बताओ, दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे हैं आपने उनका साथी किसे पाया है? आपने नहीं देखा। अभी साहब भारत की एक भारत का एक बाशिंदा, उसे बाशिंदा ही कहेंगे, नागरिक कह लीजिए, या तो मेल होगा, फीमेल होगा या थर्ड जेंडर होगा जिसे हम लोग हिजरा कहते हैं। ये तीन जेंडर होंगे। जाहिर सी बात है, एक लड़का ये तो अल्लाह की मर्जी, मर्द बना दे, औरत बना दे, हिजरा बना दे। इत्तेफाक से न वो मर्द रहा न औरत रहा, हिजरा हो गया। अब बचपन से लोग उसे ताना देने लगे। अब साहब वो कहता है कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया, मैं करूं तो क्या करूं, लोग तो मुझे ताने देने लगे। लोग ये समझते थे हिजरे सिर्फ तालियां बजाते हैं, लोग ये समझते थे हिजरे सिर्फ ट्रेन में भीख मांगते हैं, लोग ये समझते थे हिजरे सिर्फ जाकर के किसी के शादी ब्याह में नाचते और गाते हैं। हिजरों का काम सिर्फ भीख मांगना है, औरतों की लिबास पहन के डांस करना है। उसने कहा मैंने पावर ऑफ एजुकेशन को अपनाया और मैं पढ़ने लगा, इतना पढ़ा
कि मैं पुलिस महकमे में अफसर बन गया। आज जब मैं किसी गली से गुजरता हूँ तो लोग मुझे साहब भी कहते हैं और सलाम भी करते हैं। यानी आपको जिंदगी में वकार पाने के लिए इमाम किसई के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। आपको जमाने में वकार पाने के लिए आला हजरत के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। आपको जमाने में वकार पाने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। आपको जमाने में वकार पाने के लिए हुजूर ताजुश शरिया के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। आपको जमाने में वकार पाने के लिए सरकार सुरगाही के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। अपने बच्चों को बताना होगा, ऐ मेरी औलादो, इंसान दौलत से अमीर नहीं होता, इंसान इल्म, हुनर और एजुकेशन से अमीर होता है। याद रखिए, ये दौलतें खत्म हो जाने वाली चीज है, मगर अगर किसी के पास इल्म हो और हुनर हो तो ये ऐसी दौलत है जो बुढ़ापे तक दौलत देती रहती है। यानी दौलत का जरिया ये बना रहता है। यानी अगर आप समाज में अगर शिक्षित है तो जमाना आपको इज्जत की निगाह से देखेगा। अगर पूरी बस्ती में आप हैं, आपके खानदान को लोग नीची नजर से देख रहे हैं, इतनी मेहनत कीजिए या तो दीनी आलिम बन जाइए। आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत कीजिए कि जज बन जाइए। देखिए गाड़ी आपकी चलेगी, लोग निगाहें देखेंगे, जज की गाड़ी जा रही है, रास्ता साफ करो, इसे रास्ता दे दो। यानी समाज में पढ़ लिख कर आपको आगे बढ़ना है। आप भारत के टॉपर स्टूडेंट से पूछा गया, आप सीबीएसई में टॉपर कैसे बने? उसने कहा, मैंने पहले अपने आप को मोबाइल से अलग किया और किताब के करीब किया। अब आप उठा कर देखें, मुस्तफा जाने रहमत से लेकर आज तक नबी का साथी कुरान है, सहाबा का साथी कुरान है, औलिया का साथी कुरान है, उलमा का साथी किताब है, हदीसें हैं, तफसीरें हैं, किताबें हैं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, साइंटिस्टों के साथी का नाम किताब है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, साइंटिस्टों के साथी का नाम किताब है, डॉक्टरों के साथी का नाम किताब है, मास्टरों के साथी का नाम किताब है, जजों के साथी का नाम किताब है, वकीलों के साथी का नाम किताब है। अरे यार, जब सारी दुनिया के कामयाब लोगों के साथियों का नाम किताब है तो फिर हमारी जिंदगी का साथी ये मोबाइल फोन सिर्फ बनकर कैसे रह गए? कैसे रह गया? हमने मोबाइल फोन को अपने घर के हर फर्द का साथी कैसे बनाया? आपने कभी इसके बारे में सोचा? ये यहूदियों की साजिश है। यहूदियों ने देखा कि मुसलमानों की जिंदगी में दो चीजें हैं, मुसलमान पढ़ते हैं तो कुरान और बोलते हैं तो कुरान। एक जमाना था मुसलमान चलते थे तो गले में कुरान और हाथ में जानेमान। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जब इंडिया में आए तो एक हाथ में कुरान है और एक हाथ में नबी का किरदार है। यहूदियों ने कहा इस्लाम को रोकना है। कहा रुकेगा कैसे, ये तो सुनते कुरान है, बोलते कुरान है, पढ़ते कुरान है, सहाबा की बातें करते, हुजूर की बातें करते हैं। उन्होंने कहा रेडियो बनाओ और कुरान की जगह इन्हें गाना सुनाओ। अब एक जमाना आया, रेडियो का जब वजूद आया तो अच्छे अच्छे लोग कुरान को रख दिए और बीबीसी लंदन सुनने लगे, गले में रेडियो लटका करके घूमने लगे। बूढ़े बूढ़े लोग रेडियो मिर्ची देखने लगे। जब लोग ज़हनी तौर पर रेडियो के आशिक हो गए और हर जगह रेडियो पे कमेंट्री चलने लगी तो उन्होंने कहा कि अभी इनका जहन जो है सुनने वाला हो गया है, अब इन्हें देखने वाला बना। कहा किया क्या जाए? कहा ऐसी चीज बनाओ कि ये कुरान देखना भूल जाए और ये साहब हमें देखने लगे। कहा तो करोगे कैसे? कहा मुसलमानों के किरदार को बदलना, इनकी औरतों के ज़मीर को बदलना, इनके नौजवानों के कैरेक्टर को बदलना। कौन मुसलमानों के घरों में तुम्हारी एंट्री नहीं हो सकती? कहा हमारी एंट्री नहीं होगी, मगर हम ऐसी मशीन बनाएंगे, मशीनें हमारी होंगी, घरों मुसलमान के होंगे। अब उन्होंने क्या किया? कहा टीवी बना और ऐलान करो टीवी नहीं तो जिंदगी नहीं। टीवी हमारी, चैनल हमारा, 1 लाख प्रोग्राम हमारे, पैसा मुसलमानों के। आज कोई ऐसा घर है, एक दौड़ था, हर घर में टीवी ने कदम रखा। बहुत इख्तलाफात हुए। टीवी से पहले कुरान की तिलावत थी,
कुरान की तिलावत बंद। टीवी से पहले औरतें बड़ी बापर्दा रहती थी, मगर नया फैशन देख करके फैशन वाला जमाना शुरू हो गया। टीवी से पहले गांव में एक टीवी, पूरा गांव बैठकर क्रिकेट पे 2-2 दिन 3-3 दिन बर्बाद कर रहा है। अब इन्होंने देखा कि साहब टेंशन मत लो, अब तो टीवी की भी जरूरत नहीं, ऐसा मोबाइल फोन बना दो सारी दुनिया उसमें सिमट जाए। अब जाहिर सी बात है मोबाइल फोन वही है, लेकिन आप जरा सा सोचे जब टीवी आई तो जमाने ने बहुत कुछ कहा, सारे लोग टीवी नहीं तो जिंदगी नहीं, मगर बरेली की टिकी हुई चटाई पे बैठकर इमाम इश्क मोहब्बत ने उस वक्त फतवा दिया था, ऐ लोगों टीवी देखना हराम है। जानते हैं क्यों फतवा दिया था? और जिनकी निगाहें देख रही थी, अगर आज मुसलमान टीवी से नहीं रुके तो इनकी बेटियों की इज्जत और आबरू को नीलाम होने से कोई नहीं रोक सकता है। आज इन्हें बेहया होने से कोई नहीं रोक सकता है, आज इन्हें नाच गाने बाजे से कोई नहीं रोक सकता है, मगर हम नहीं रुके। नतीजा ये निकला, बेटियां हमारी किरदार यहूदियों की, औलादें हमारी कैरेक्टर यहूदो नसारा की, साहब घर हमारा मगर चैनल यहूदो नसारा के। मोबाइल की जगह टीवी के जगह पे अब मोबाइल ने जगह ले ली। अब तो मोबाइल में सारी दुनिया मौजूद है। मोबाइल का हाल ये है, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। अब मोबाइल में जिसका जैसा ज़मीर होगा वैसी चीज देख ले। मोबाइल वही है, अच्छी चीज देखना हो तो अच्छी चीज देखो, बुरी चीज देखना हो तो बुरी चीज देख लो। मोबाइल चलाने वाले को देख लो, अगर अच्छी चीजें चला रहा है समझ लो ज़मीर अच्छा है, बुरी चीजें चला रहा है समझ लो ज़मीर बुरा है। यानी यहूदियों की साजिश थी और यहूदी आज 100% कामयाब होते हुए नजर आए। आला हजरत ने लिखा, मज़ारों पर एक चादरें चढ़ाओ ताकि पता चले अल्लाह के वली की कब्र है, मगर आज मज़ारों पे 1 लाख चादरें चढ़ गई और बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर गया। आज हमारी कौम की बेटियों ने इज्जत को इज्जत समझना छोड़ दिया। आज बेटियां भूल गई, अल हया व शुबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। आज बेटियों से इज्जत की बात कीजिए तो उन्हें बुरी लग जाएगी, आज औरतों से इज्जत की बात कीजिए तो उन्हें बुरी लग जाएगी। आज सबसे ज्यादा इंडिया में तलाक की नौबत आ गई है। अब आप कहेंगे मौलाना क्यों? आज कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन तलाक की धमकियां नहीं, तलाक की बातें नहीं। ताज्जुब की बात है, वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ एक है, नौजवान लड़कों की शादियां हो रही हैं। इस्लाम कहता है निकाह से पहले मर्द है तो बीवी का हक जानना फर्ज है और औरत है तो शौहर का हक जानना फर्ज है। मगर बीवी बीए पास है मगर शौहर की के हुकूक की तालीम नहीं है। शौहर एमए पास है मगर बीवी के हुकूक की तालीम नहीं है। जाहिर सी बात है जब मियाँ बीवी दोनों हुकूक जानते नहीं है तो एक दूसरे की इज्जत और आबरू की बातें कैसे होंगी? ऐ मेरी कौम के शहजादों, अगर आपने तालीमी मामलात में मेहनत नहीं की है, क्या कहा अल्लाह के नबी ने? जो खाओ अपनी बीवियों को खिलाओ, जो पियो अपनी बीवियों को पिलाओ, जो पहनो अपनी बीवियों को पहनाओ, अच्छे मकानात अच्छी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करो। मगर आज हमारी पोजीशन क्या है? आज जब मौलाना साहब निकाह पढ़ाते हैं तो इमाम साहब ने निकाह पढ़ाते वक्त क्या कहा था? 51,000 रुपए बिल एवज मुबली मां नानो नफका व सुकना के मैंने आपके निकाह और ज़ौजियत में दिया, क्या आपने कबूल किया? उस वक्त लड़का मुझे लगता है नानो नफका व सुकना का माना नहीं जानता, बस वो समझता है कि बस हमें कह देना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाँ मैंने कबूल किया। अब साहब सब कुछ कबूल कर लिया, इसलिए मैं याद दिलाना चाहूंगा, सुनो है ना, जगा दो माशाअल्लाह, है ना, मेरे भाई को जगा दो। नींद आ रही है ना, नींद आनी भी चाहिए। ये तो जाहिर सी बात है, मेरा बड़ा चहीता लड़का है, अल्लाह इसे सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा था, अब साहब इमाम साहब तो बात करते हैं कि 51,000 रुपये तो आपको देना है, मगर नानो नफका, ये नान का माना रोटी, यानी आज के बाद ये जो बीवी है लड़की है इसका खाना आपके जिम्मे है। नफका का माना खर्चा, इसके जो जायज इखराजात हैं आपके जिम्मे है। फजूल खर्ची की बात मैं नहीं करता, वह सुकना और इसके रहने के लिए मकान की जिम्मेदारी आपकी है। अब साहब लड़की की शादी हो गई, 2 महीना बाद मैका जा रही है, लड़का से कहती है मैका जा रही हूँ कुछ खर्च दे दीजिए, कहता तेरा बाप कमा करके रख करके गया है। जाहिर सी बात है ये बातें कौन बोलेगा? आज हम अपनी बेटियों का सही से ख्याल नहीं रखते, आज हम अपनी
बीवियों का सही से ख्याल नहीं रखते, आज हम अपनी माँ बहनों का सही से ख्याल नहीं रखते, आज बेटियां मुर्तद हो रही हैं, आज साहब बीवियां भाग रही है। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या सिर्फ औरतों की ही गलती मान ली जाए? जब औरतों की भी बातें सुनिएगा ना दारुल क़ज़ा में बैठकर तो आपको पता चलेगा। कहती है शौहर मेरा है मगर रहता किसी और के साथ है, शौहर मेरा है मगर कभी ख्याल नहीं करता है, शौहर मेरा है मगर शराब के नशे में धुत रहता है। मौलाना साहब ये तो मेरा जेवर बेच करके जुआ खेल गया, सट्टा खेल गया। अरे मेरी कौम का नौजवान तू कहाँ जी रहा है, किस माहौल में जीवित और जिंदा है? इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, 3 चीजें हमारी जिंदगी में हो। पहली चीज ईमान के एतबार से मजबूत रहिए ताकि हर हाल में आप ईमान के जरिए आपकी हिफाजत होती रहे। दूसरा, जहां भी रहिए इल्म के हर शोबे में मजबूत रहिए। आज हमारी कौम के बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, आपने सुना होगा साहब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। बिजनेसमैन है, बिजनेस में घाटा लग गया, आत्महत्या कर लिया। साहब मियां बीवी है, आपस में रंजिश हुई, आत्महत्या कर लिया। नौजवान नीट की तैयारी कर रहा है, अच्छी तैयारी नहीं हुई, आत्महत्या कर लिया। मैं पूछना चाहता हूँ मैट्रिक में अच्छा रिजल्ट नहीं आया, आत्महत्या कर लिया। ऐ मेरी कौम का नौजवान, इस्लाम में आत्महत्या हराम है, आप कभी आत्महत्या न करना। इस्लाम कहता है संजीदगी के साथ जीना सीखो। मियां ये क्या बहुत जरूरी है, घाटा और नफा ये एक बिजनेस का की फितरत में दाखिल है। अगर घाटा लग गया तो टेंशन मत लो, फिर से खुदा का नाम लेकर के शुरू करो। अपनी गलतियों को देखो, हमसे बिजनेस करने में कहाँ गलती हो गई है। ज़कात की अदायगी ईमानदारी से करते रहो ताकि अल्लाह तेरी माल की हिफाजत करता रहे। याद रखिएगा, जिन दौलतों के हम ज़कात नहीं निकालते वो दौलतें बर्बाद हो जाती है। इसलिए बिजनेस में अगर 5 रुपये का भी घाटा लगे ना, कभी बैठ करके ईमानदारी के साथ हिसाब कर लेना कि कहीं हमारे हिसाब में तकलीफ तो नहीं हो गई है, कहीं ज़कात निकालने में कमी तो नहीं हो गई है। पढ़ने वाले नौजवान हो, मैट्रिक में अच्छा नंबर नहीं आया, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। अरे मैट्रिक के एक पेपर में कितने सवाल आते हैं? 10 सवाल आते हैं, 12 सवाल आते हैं। पूरे किताब में 12 सवाल ही है, पूरे किताब में सैकड़ों सवाल है, मगर इम्तहान में 12 सवाल आए। हो सकता है आपने जिन सवालात की तैयारी की वो नहीं आया, दूसरे सवालात आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाहिल हैं और जो पास कर गया वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो गया। बस फर्क इतना है कि आपको उस 12 सवालात में कुछ सवालात के जवाब आपको नहीं याद थे जो उस वक्त आपने नहीं दिया। टेंशन मत लीजिए, फिर से मेहनत कीजिए। अब इस बार मेहनत बढ़ा दीजिए, इंशाअल्लाह आइंदा आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। आपसे कहना चाहूंगा, इसलिए कभी आत्महत्या न करना। माँ बाप से भी गुजारिश है, आपका बेटा स्कूल कॉलेज से पढ़ करके आता है, अगर वो निगेटिव हो रहा है तो आप ये न कहें, वो कहता है अब्बा हुजूर मुझसे ये नहीं हो पाएगा, आप कहिए बेटा टेंशन मत लीजिए। आपको ये नहीं कहना है नहीं हो पाएगा तो 2-4 जूते निकाल कर मारूंगा, तुमने मेरा 10 लाख बर्बाद कर दिया, 20 लाख बर्बाद कर दिया, बड़ा नालायक है, घर से निकाल दूंगा, नहीं। बल्कि आपकी औलाद है ना, इंजीनियरिंग का छात्र हो सकता है, मेडिकल का छात्र हो सकता है, यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, इंटर की तैयारी कर रहा है, हो सकता है। अब आप गार्जियन है उसके, तो अब आपकी जिम्मेदारी है सरपंच से पूछिए बेटा आपको प्रॉब्लम कहाँ है ये बताइए। क्या कहना, आपको प्रॉब्लम कहाँ है, हम उसका वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। अब वो कहेगा अब्बा बड़ी मेहनत की मगर मैथ मुझसे नहीं हो पा रहा, इंग्लिश नहीं पढ़ रहा। बेटा टेंशन मत लीजिए, आप मत बनिए, आप इंजीनियर मत बनिए, डॉक्टर मत बनिए, आप एक काम कीजिए, आप अकाउंटेंट का कोर्स कर लीजिए, आराम से एसी में कुछ कमाइएगा। बाकी जिंदगी जीने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, जिंदगी जीने के लिए सब्र और सुकून की जरूरत है। अब आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा, इसमें बहुत सारे सबसे ज्यादा मैरिड लोग बैठे हैं जो शादीशुदा है। आपको याद होगा आज सारी दुनिया दौलत के पीछे भाग रही है, हम लोग इस दौलत के पीछे और जमीन व जायदाद के पीछे, महंगी लग्जरी गाड़ियों के पीछे। मगर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी क्या है? अरे भाई जमीन भी पूंजी है, दौलत भी पूंजी है, बिजनेस जो हम करते हैं ये भी पूंजी है, हमारे पास जो मकानात है ये भी पूंजी है। मगर दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी क्या है?
तो दुनिया के सबसे महान व्यक्ति, महान इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी तुम्हारी नेक बीवी है। दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी क्या है? नेक बीवी। अब ये आप इसका दर्द समझिए और खूब गौर से सुनिएगा। बहुत बड़ा अमीर इंसान है मगर बीवी नेक है नहीं है तो शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, जाकर जहां तहां बेचारा हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, टेंशन में रहेगा। बहुत बड़ा अमीर इंसान है मगर बीवी अच्छी नहीं मिली, अब बेचारे की जिंदगी जहन्नम बन गई है। इसलिए नबी ने कहा सारी पूंजियां एक तरफ और नेक बीवी एक तरफ। अब एक इंसान गरीब है, बहुत ज्यादा उसके पास दौलत नहीं है, बहुत ज्यादा उसके लंबे प्रोटोकॉल नहीं है, उसके पास लग्जरीज गाड़ियां नहीं है, बहुत महंगा नहीं है, दिन भर ठेला ठुली पे बेचकर 500 कमाता है मगर बीवी बड़ी नेक है। जब आता है सब संवर कर खड़ी रहती है, लबों पे मुस्कुराहट है, फिर गरम गरम बेहतरीन खाना बना कर रखती है, बच्चों को वक्त पे खाना खिलाती है, लंच बॉक्स दे करके स्कूल भेजती है, वक्त पे नमाज पढ़ती है, बच्चों को पढ़वाती है, शोहर की खिदमत में लगी रहती है। अब बताओ ईमानदारी से मेरी कौम के शहजादों, वो अमीर शहजादा किसे नेक बीवी नहीं मिल सकी, उसके पास लग्जरीज कार है, सारी दुनिया की दौलतें हैं मगर जिंदगी में सुकून नहीं, इसलिए कि बीवी नेक नहीं है मगर इसके पास लग्जरीज कारें नहीं है, दिन भर धूप में खटता है मगर घर में भी सुकून है, ठेले पे भी सुकून है, रात में भी सुकून है, दिन में भी सुकून है, लबों पे मुस्कुराहट है, इसलिए कि अल्लाह ने उसे नेक बीवी से नवाज दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बेदारी के सूद है, मोहब्बत से दोनों हाथ या रसूल अल्लाह, सब लोग या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। यही वजह है इस्लाम ने जब शादी की बात आई तो क्या कहा? देखो खूबसूरती बाद में देखना, दौलत बाद में देखना, खानदान बाद में देखना, फासफरू बेज़ाती दीन, दीनदारी पहले देख लेना, शराफत पहले देख लेना, किरदार पहले देख लेना, इखलाक पहले देख लेना, जरा पता लगा लेना उसकी माँ कैसी थी, उसके वालिद कैसे हैं, उसके घर का माहौल कैसा है, लड़की का रहन सहन कैसा है, यानी पता लगा लेना। अगर सब्र वाली है तो 500 के कपड़े में भी तेरे लिए सुकून है, और अगर सब्र वाली नहीं है तो 5 लाख का कपड़ा भी ला दोगे तो जिंदगी में सुकून नहीं है। मैं अपनी कौम के नौजवानों से कह रहा था, अब मैं शादीशुदा लोगों से खिताब कर रहा हूँ, क्या अगर आपकी जिंदगी में अगर आपकी बीवी गलत मिल गई तो क्या आप आत्महत्या कर लीजिएगा, उसे फांसी के फंदे पे लटका दीजिएगा? क्या अगर मैं औरतों से पूछना चाहता हूँ कि आपका हस्बैंड गलत मिल गया तो किसी आवारा आशिक के साथ मिल करके उसके टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में डाल दीजिएगा, जैसा आज औरतें डाल रही हैं? इस्लाम इसकी मुखालिफत करता है, इस्लाम ने इसका प्रोटोकॉल दिया। आप कहेंगे मौलाना क्या प्रोटोकॉल है? अगर आप लोगों की इजाजत है तो बता दो। इजाजत है? सब सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए, सब लोग सुनना चाहते हैं? बहुत नौजवान बहुत पीछे बैठे हैं। मैं देखिए जलसों में नहीं कहता कि आप लोग पीछे से आगे आ जाइए, जहां से आप सुने मजे ही मजे हैं, है ना? सब लोग बेदार हैं, बस सुन रहे हैं, यही बहुत है। मैं ये अर्ज कर रहा था, इस्लाम ने कहा ये मियाँ बीवी है, पहले कोशिश कीजिए। क्या कहा इस्लाम ने? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। औरत और मर्द आपस में एक दूसरे के लिए पर्दा है। क्या है? पर्दा है। अरे ये मेरा मोबाइल फोन है, इसके ऊपर क्या है? ये पर्दा है ना, कवर है ना। अब ये जो भी है अंदर लाल है, पीला है, कुछ भी है, मगर इस पर्दे ने इसे क्या किया है? छिपा रखा है। इस्लाम ने कहा औरत मर्द के लिए पर्दा है, मर्द औरत के लिए पर्दा है। अब बीवी आपकी है, 1 करोड़ खराबी है, पहली हमारी जिम्मेदारी है हम उसे छिपाएंगे। क्या करेंगे? अभी नहीं कि दोस्तों की महफिल में बैठकर अपनी बीवी की शिकायत। आजकल नौजवान लोग बेचारा बैठकर वो अपनी बीवी की शिकायत को, अपनी बीवी की शिकायत को, अपनी बीवी की शिकायत को। बीवियों का भी हाल वही है, सारी सहेलियां ऑनलाइन जमा होकर वो अपने शौहर की शिकायत को, अपने शौहर की शिकायत को, अपने शौहर की शिकायत, वो अपने शौहर की शिकायत। अजीब हालात बन गए। सैयदा
खातून जन्नत की सीरत का एक गोशा सुने। सैयदा खातून जन्नत है। सरकार मौलाए कायनात मैदान जंग में तशरीफ ले जा रहे हैं। कहते हैं सैयदा ज़ादे सफर के लिए कुछ रोटियां बना दे। सैयदा खातून जन्नत ने घर में जितना आटा था सारे आटे को गूंथ करके रोटियां बना दी और कहा कि आप ले जाएं, मुजाहिदीन इस्लाम की भी मदद हो जाएगी। सरकार मौलाए कायनात गए और मैदान जंग से फतह कामरानी के साथ वापिस आए। सैयदा खातून जन्नत की सीरत सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मैं हर औरत से कहता हूँ तावीज़ें लिखवा कर शौहरों को खुश करने की कोशिश मत करो, किरदार ऐसा बनाओ तेरा मुस्कुराता चेहरा देखकर तेरा शौहर खुश हो जाए। किरदार ऐसा बनाओ। तावीज़ों पे भरोसा करने वालियों, तुम लोगों ने जाली बाबाओं के मार्केट को गर्म कर दिया है। आज तो सुन सुनकर मुझे अफसोस होता है ना। आज मेरे एक रिश्तेदार बता रहे थे कि फला मौली साहब हैं, घर बांधने के लिए 12,000 रुपया लेते हैं। मैंने कहा ताजुब की बात है, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आया और शम्मा सबिस्ताने रजा रख करके तावीज़ लिखने वाला बन गया। जाहिर सी बात है, मैं कहूँगा नहीं, आप ये सारे प्रोटोकॉल को याद रखें, नहीं अपने किरदार को बेहतर बनाएं। मेरे वालिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया के बड़े आशिक सरकार मुफ्ती आजम हिंद के बड़े खास, जाहिर सी बात है, फरमाया करते थे कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते थे तावीज़ पहनो मत तावीज़ बन जाओ। तावीज़ पहनो मत तावीज़ बन जाओ। अब बीवी तावीज़ पहने के शौहर मुझसे मोहब्बत करेगा, अरे इतना अच्छा इखलाक बनाओ कि तेरा शौहर तुझसे मोहब्बत करने लगे, तेरा शौहर तुझसे मोहब्बत करने लगे। इतना अच्छा इखलाक बना लो, मजबूर हो जाए, करोड़ों औरतों के भीड़ में हो, मगर उसे याद आए तो अपनी बीवी का चेहरा याद आए, मुस्कुराता हुआ चेहरा, बीवी की मोहब्बत। सुनो, सैयदा खातून जन्नत है, लबों की मुस्कुराहट के साथ सरकार मौलाए कायनात का इस्तकबाल करती है। साहब दस्तरखान बिछाती है, पानी ला करके रखती है। सरकार मौलाए कायनात ने पानी नोश किया, कहा सैयदा जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है। सैयदा ने ज़बान से कुछ नहीं कहा, आंखों में आंसुओं के कतरात आ गए। आंखों में आंसू के कतरात आ गए। सैयदा खातून जन्नत की आंखों में आंसू देखकर सरकार मौलाए कायनात मचल गए। कहा सैयदा आपकी आंखों में आंसुओं के कतरात क्यों? कहा अली, जिस औरत के पास खाने के लिए कुछ नहीं हो और उसका शौहर भूखा हो तो बताओ उसकी आंखों में आंसू के कतरात नहीं आएंगे तो क्या आएगा? अल्लाह। सरकार मौलाए कायनात ने कहा फातिमा घर में कुछ नहीं है। कहा अली घर में कुछ नहीं है। कहा कब से नहीं है? कहा मेरे शौहरे नामदार जिस दिन आप मैदान जंग में गए मैंने सारे आटे की रोटियां बनाकर दे दी, उस दिन से घर में आज तक चूल्हा नहीं जला। अल्लाह सुने, बीवी अपनी भूख के लिए नहीं रो रही है, शौहर के भूख को एहसास करके सैयदा रो रही है। सरकार मौलाए कायनात ने सुना ना कि 10 दिन से मेरी शरीके हयात ने कुछ नहीं खाया है तो आपकी आंखों में भी आंसू आ गए। सरकार मौलाए कायनात जब रो पड़े ना तो सैयदा खातून जन्नत कहती है ऐ अली शेरे खुदा आप क्यों रो पड़े? कहा फातिमा जिसकी बीवी 10 दिन से कुछ न खाई हो और शौहर पेट भरता रहा हो, बताओ वो अपनी बीवी के भूख को एहसास करके क्यों नहीं रोए? मैं कहता हूँ मुहर्रम के महीने में सिर्फ फातिहा कराने वाली मेरी कौम की बहू बेटियों, फातिहे बाद के चराग बाद में जलाना, अपने घरों में सैयदा खातून जन्नत के सीरत के चराग को पहले जलाओ। सुभान अल्लाह, पहले जलाओ सैयदा खातून जन्नत से। सरकार मौलाए कायनात ने पूछा फातिमा एक बात बताओ, मैका भी करीब में है, अगर आप मैका खबर भेज देती तो खाना आ जाता। सैयदा खातून जन्नत कहती है अली जब मैं घर से चली थी तो बाबा ने कहा था बेटी कुरान पढ़ती हो तो कुरान का ख्याल भी रखना। ए अली बाबा जान ने कहा था कुरान कहता है मर्द औरत के लिए पर्दा है, औरत मर्द के लिए पर्दा है। अली मैं भूखे रहना तो गवारा कर सकती हूँ मगर शौहर और ससुराल की गरीबी को मैका में बयान करना गवारा नहीं कर सकता। बयान करना गवारा नहीं कर सकते कि मेरे शौहर के घर में खाने को कुछ नहीं है। अली सब गवारा है मगर मेरे मैका वालों को ये पता चल जाए कि मेरे ससुराल में गरीबी ने कदम रख दिया है, ये फातिमा को बयान करना गवारा है। ऐ मेरी कौम की बहुओं
आज तो तेरे आए हुए ससुराल में एक दिन भी नहीं होते, तो फोन पे ससुराल की सारी बातें अपनी सहेलियों से कह देती हो, सारी बातें अपनी सहेलियों को बता देती हो। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, इन बातों को याद रखना, आज से जिंदगी में इन बातों को जगह देना। हजरत अली कहते हैं फातिमा ये बात सच है, ये बात सही है, मगर इतना तो बताओ कि चलो तुमने मैका खबर नहीं भेजा, पड़ोसियों से कह देती। कहा अली जब मैका नहीं कह सकती तो पड़ोसियों को कैसे बता सकती हूँ कि अली के घर में गरीबी ने कदम रख दिया है। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, याद रखना और शहजादों, आप प्रोटोकॉल याद रखें, हजरत अली का प्रोटोकॉल, सैयदा खातून जन्नत का प्रोटोकॉल। शौहर में कोई खराबी, बीवी को इजाजत नहीं मैका में बयान करे, बीवी में खराबी, शौहर को इजाजत नहीं घर वालों को बताए। पहले कोशिश कीजिए कि आप खुद उसकी इस्लाह करें। बीवी के अंदर कोई कमी है आप उसे बताएं, बेगम आपकी आदत ठीक नहीं, अगर ऐसा होता तो अच्छा था, ऐसा होता तो अच्छा था, ऐसा होता। आप पहले सिखाएं, कोशिश करें, अगर सीख जाए सुभान अल्लाह, नूरुन अला नूर, फिर भी नहीं मानती तो अब उसकी आदत बिगड़ती जा रही है। अब पहले उसके मैका में खबर करें, माँ बाप को समझाए, ठीक है। अब दूसरी सूरत को समझाए, अगर उनके समझाने पे भी नहीं समझती है तो अब उसके आप बोलना बंद कर दो। क्या करें, पहले फिर भी नहीं मानती है तो सोना बंद कर दे, फिर भी नहीं मानती है तो धमकाए, नहीं मानोगी तो तलाक दे देंगे। ये तो बेचारा थोड़ी सी बात हुई तो सब दे देता, एक भी उधार बाकी नहीं रखता, एक भी उधार बाकी रखता है क्या? जब किसी से पूछिएगा कहेगा कितना दिए, कहा हजरत हम तो बोल रहे थे तो गिने ही नहीं कितनी बार हुआ। ये समझता है कि 3 से कम देंगे तो तलाक वाकई ही नहीं, अरे 3 की तो जरूरत ही नहीं, धमकाओ तलाक दे देंगे, एक बार धमकाओ ना तलाक दे देंगे, माथे से पसीना आ जाए। फिर भी नहीं मानती है तो पहले एक दे, छोड़ दो, अपने बात समझौता किया जाएगी, हंगामा होगा तब कहिए ठीक है हम मानने के लिए तैयार है। अब कोई हलाला की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ गए बात, कोई हलाला की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं है। रजत कीजिए घर लेकर के, फिर भी नहीं मानती, नहीं मैं अब दूसरी शादी करना चाहती हूँ, तो 3 मत दीजिए, तलाके बांध दीजिए या 2 दे दीजिए, निकाह से निकल जाएगी। चली गई, शादी लग रही है, फिर उसे एहसास हुआ हम गलती पर है, हमें शौहर के पास पलट जाना चाहिए, तो निकाह करके ला लीजिए, कोई हलाला की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई हलाला की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ईमानदारी से बताइए, इतने दिन से जलसा सुनने के इस मसले पे आप सुने थे, इस मसले को आपने कभी सीखने की कोशिश की थी? जरूरी है। नहीं, लेकिन सीखिए। हमारे जब अकाबिर उलमा आते हैं, अच्छे अच्छे आलिम दीन, तो कुछ जिंदगी के बारे में सीखिए। आपकी बीवी है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, मैंने जितने प्रोटोकॉल बताए, आपको तलाक की नौबत तक कभी पहुंचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बीच में ही आपकी बीवी आपकी वफादार बन जाएगी, बीच में ही आपकी बीवी आपकी वफादार बन जाएगी। मेरे दोस्त, ये आत्महत्या कर लेना बीवी की वजह से, जैसे आज पढ़े लिखे नौजवान कर ले रहे हैं साहब, औरतें शौहर की वजह से आत्महत्याएं कर ले रही हैं साहब, ये दुरुस्त नहीं है। आज के बाद आत्महत्या बंद कीजिए, ईमानी जिंदगी को मजबूत कीजिए, इल्मी जिंदगी को मजबूत कीजिए। आखिरी पैगाम सुल्तान रजा पहुंचाना चाहेगा, क्योंकि अब 1.5 लगने वाले हैं और राशिद रजा मरकजी साहब बरेली शरीफ से आए हैं। क्या सुरीली आवाज है, क्या शानदार पढ़ते हैं, और लगभग जितनी मेरी तकरीर हुई, हमें करना क्या है? जमाना हमें अकलियत कह रहा है, पसमानदा कह रहा है। मेरी कौम के शहजादों, इतना पढ़ो, इतनी मेहनत करो, मदरसे में हो जबरदस्त तालीम बनो, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो IPS अफसर बनो, डॉक्टर बनो, वकील बनो, जहां कदम रखो तेरे इल्मी रोबो दबदबा से जलजला आ जाए। जमाने में एक ही नाम काफी हो, हमारी पहचान के काफी हो, हमारी पहचान के लिए। जितने लोग हमें हिकारत भरी नजरों से देख रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह एक इल्म वाले ने सबके सामने परचम लगा दिया।
परचम लहरा दिया। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, नहीं तेरा नशीबन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। हम कहाँ आए हैं? अल्लाह के मुकद्दस वली के उर्स में आए हैं। उर्स का मकसद क्या है? हम क्यों बुजुर्गों का उर्स मनाते हैं? क्या फातिहा करना सिर्फ मकसद है? फातिहा कहीं से कर सकते हैं, चादरें चढ़ाना मकसद है, कभी भी कर सकते हैं। असल मकसद है बुजुर्गों की सीरत को आम करना, बुजुर्गों के किरदार और कैरेक्टर को आम करना। ये जो अल्लाह के वली अपनी कब्र में हजरत दाता मस्त अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, जितने अल्लाह वाले, ये अल्लाह वाले कौन है? ये अल्लाह के दोस्त है, जिन्होंने सारी जिंदगी खुदा की राह में कुर्बान कर दी और अल्लाह के नेक बंदे बन गए। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये सब जितने नेक बंदे हैं, ये सब कामयाब इंसान हैं। तो दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे हैं, अल्लाह ने उन्हें कितना वक्त दिया? क्या उनके पास एक्स्ट्रा कोई वक्त था? 24 घंटा। कितना वक्त था? 24 घंटा। और हमारे पास कितना वक्त है? 24 घंटा। आजकल जलसों में नारा लगता है मुख्तार भाई, मसलके आला हजरत। अरे सुने हैं कि नहीं नारा, मसलके आला हजरत? अभी राशिद भाई आएंगे तो लगाएंगे ना, मसलके आला हजरत। हाथ बता करके बोलिए, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। अरे आला हजरत का एहसान हम पर इतना है कि मसलके आला हजरत के बगैर किसी का इस दौर में काम नहीं चल सकता। अगर आला हजरत का कलम नहीं उठा होता तो आज बाप की कौर पे कोई फातिहा पढ़ता हुआ नहीं। मैं तो कहता हूं, अगर फरोगे उर्दू में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा किसी ने काम किया है तो तन्हा बरेली के अहमद रजा ने किया। आप कहेंगे मौलाना कैसे? तो किसी ने गजल के अशार लिखे, किसी ने उर्दू में किताबें लिखी, बरेली के रजा ने तो उर्दू में कुरान का तर्जमा कंजुल ईमान लिख दिया। जहां जहां कुरान है वहां वहां बरेली में अहमद रजा का कंजुल ईमान है। कोई जवाब आ सकता है? न नस्र में जवाब है,